स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोडाल्स का रिवीजन करवाया था। आज मैं आपको प्रेपोजिशंस का रिवीजन करवा रहा हूँ। प्रेपोजिशंस की एक पीडीएफ भी बना के भेजूंगा। उस पीडीएफ का काम आपको रजिस्टर में करना है। प्रेपोजिशंस। A preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words in the sentence. Preposition वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं और उनको उससे रिलेशन पता लगता है उनका। जैसे The crow sat on the branch of a tree। तो यहाँ ब्रांच से पहले on आया है, ये preposition है। There is another red fort situated in Agra। तो in preposition है। There is a toy shop near my house। तो near preposition है। Some of the students did not look at the blackboard। तो at जो है वो preposition है। A dog run after the cat। यहाँ after preposition है। Man landed on the moon decades ago। तो on preposition है क्योंकि moon से पहले on आया है ये। He drove a nail through the door। तो through यहाँ पर preposition है। We shall complain against the talkative children of our class। तो यहाँ against जो है वो preposition है। Many Indian students go to the USA for higher education। तो यहाँ पर to जो है वो preposition है। The famous actor appeared before his fans at noon। तो before preposition है। Ankit has returned from his overseas trip। तो from preposition है। The thief jumped over the wall and escaped। तो over preposition है। It rained heavily throughout the day। throughout। There was a small hut beside the tree। तो beside जो है वो preposition है। The dog disappeared within no time। तो within preposition है। इसके बाद classification of preposition forms। prepositions तीन तरह की होती हैं, simple, compound and phrasal। तो इन तीनों को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल prepositions। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल preposition। सिंपल prepositions आर वन वर्ड prepositions। जो सिंगल वर्ड की prepositions होती हैं वो सिंपल prepositions होती हैं। जैसे जस्ट इन लीव्स एट कनॉट प्लेस इन दिल्ली। तो यहाँ एट और इन preposition है। प्लेयर्स आर ऑन द ग्राउंड फॉर प्रैक्टिस। तो ऑन और फॉर ये preposition है। इट इज प्लीजेंट to stand by the campfire during winter। तो during word जो है इधर by और during दो word prepositions हैं। Lisa gifted a golden watch to Harry। तो to जो है वो preposition है। We work here till 5 o'clock every day। तो till word जो है वो preposition है। अब नंबर 2 compound prepositions। These prepositions are formed by prefixing a simple preposition to a noun, an adjective or an adverb। ये prepositions जो होती हैं वो compound word से पता लग रहा है कि ये simple prepositions से जैसे simple prepositions होती है ना, उससे पहले prefixing a simple preposition to a noun, an adjective, noun या adjective या adverb
से पहले आती हैं ये। जैसे देयर इज ए लॉन्ग ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो अक्रॉस वर्ड जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन होगा। शी क्विट द जॉब अगेंस्ट माई एडवाइस, तो अगेंस्ट यहाँ पर प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन। हिज स्ट्रेंज बिहेवियर इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, तो बियॉन्ड जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर, तो विदाउट जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। हु वर यू टॉकिंग अबाउट दैट डे, तो अबाउट कंपाउंड प्रपोजिशन है। Examinees have to finish their test within 3 hours, तो within जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। इसके बाद है phrasal preposition. You have learned that when a group of words become meaningful, it is called a phrase. When prepositions appear in the form of phrases, जब कोई preposition फ्रेजेस के रूप में अपीयर होती है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, दे आर टर्म्ड एज फ्रेजल प्रपोजिशंस। जैसे इन केस ऑफ ए फायर यू शुड साउंड द फायर अलार्म, तो इन केस ऑफ आ गया। आउट ऑफ इग्नोरेंस पीपल एंड अप ब्रेकिंग रूल्स, तो आउट ऑफ आ गया। यू गेट ₹100 इन ल्यू ऑफ एन आवर वर्क, इन ल्यू ऑफ हो गया। ऐसे ही all that glitters is not gold according to a popular saying, तो according to जो है वो preposition है। By dint of an extraordinary performance the students won a gold medal, तो by dint of ये जो है वो phrasal prepositions हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशंस रिलेशनशिप, जैसे प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी, प्रपोजिशन ऑफ मैनर, प्रपोजिशन ऑफ रीजन या पर्पस। जैसे फर्स्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। There are the prepositions which relate to time. Prepositions of the group include in, at, on, for, till, until, during, after, by, before, since, etc. तो जो ये वर्ड्स हैं ये सारे preposition of time के लिए यूज किए जाते हैं। It gets very cold ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी, तो ड्यूरिंग वर्ड आया, ये टाइम शो कर रहा है। यू कैन स्टे हियर टिल द एंड ऑफ द मंथ, तो टिल ये भी समय को शो कर रहा है, तक। द मैन हैज बीन कफिंग फॉर सम मिनट्स, तो फॉर। इसके बाद नंबर 2 preposition of place और position, तो there are the prepositions which relate to place or position. These include at, on, in, under, between, below, above, beneath, against, in front of, before. ये सारे के सारे prepositions of place या position को शो कर रहे हैं। जैसे he found his worksheet lying under the table, तो under word जो है वो place को शो कर रहा है। A group of students stood chatting at the canteen, तो at जगह position place को शो कर रहा है ये। The elephant fell into the ditch that was hidden beneath the leaves, तो ये beneath word जो है वो पोजीशन को शो कर रहा है। prepositions of direction and movement, दिशा, direction. There are prepositions
which relates to direction and movement. Such prepositions are from, to, out, of, in, into, है ना, या on to, या OFF, ऑफ. ये वर्ड्स जो हैं वो सारे डायरेक्शन या मूवमेंट को शो कर रहे हैं. इसके बाद एग्जाम्पल्स. He got off the carriage as soon as it stopped. तो OFF ऑफ आ गया है जो डायरेक्शन या मूवमेंट को शो करेगा. The children run out of the classroom. तो आउट ऑफ ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, बाहर, क्लास से बाहर निकल रहे हैं बच्चे. द कैट फेल इनटू द वेल. इनटू ये मूवमेंट को शो कर रहा है. अब preposition of agency. These are the prepositions which relates to the agent of action. Prepositions of this category include by, with the help of, etc. Examples. The soldier killed the enemy with a gun. तो with आ गया यहाँ. This page was torn off the book by a small child. By आ गया. We could climb the high mountain with the help of a rope and iron pegs. तो with the help of, तो ये वर्ड्स आ गए जो हमें एजेंसी को शो कर रहे हैं. Preposition of manner. These relate to the manner of an action. Preposition of the category include with, by, without, etc. No one can enter the hall without permission. तो without word जो है manner को शो कर रहा है. This letter was delivered by courier. By यहाँ पर the teacher marked the answer sheet with a red pen. तो with, तो इस तरीके से ये preposition of manner को शो कर रहे हैं. Next, prepositions of reason और purpose. जो reason या purpose को शो करते हैं. These relate to some reason, cause or purpose. These prepositions include to, for, in order to, because of, due to, etc. जैसे my father has gone to a meeting of diplomats that has been organized in Japan. तो to आ गया यहाँ पर. You suffer because of your own actions. तो because of आ गया यहाँ. रचना purchased a necktie for her brother. तो for आ गया यहाँ पर. ठीक है. Next, correct use of prepositions. We often make a mistake in use of some prepositions. Let us learn the correct use of these. In और at, ये दो preposition है, इनका correct use. जैसे as prepositions of place, in relates to an area of region. In जो है area of region, किसी region का area को show करता है. While at relate to a point, और at जो होता है वो particular किसी point को show करता है. जैसे examples, he has been living in Delhi for years. तो in एक ये रीजन को शो कर रहा है. दिल्ली जो है बड़ा शहर है, उसके लिए इन आया है. अगर छोटी जगह के लिए होता तो वहाँ एट आता. जैसे ही लीव्स एट नजफगढ़ इन दिल्ली. तो एट जो है नजफगढ़ छोटी जगह के लिए आया है और इन दिल्ली के लिए आया है. ठीक है. आई स्टॉप्ड एट द ग्रोसर शॉप ऑन माई वे होम. तो एट आ गया यहाँ पर क्योंकि एट जो है पास के लिए है. ग्रोसर शॉप जो है पर्टिकुलर पॉइंट आ गया ये. एज prepositions of time, in relates to a period of duration while at relates to a point of time. I shall return in an hour or so, or we meet at 10 a.m. sharp. तो पर्टिकुलर टाइम के लिए at आ गया है और in an hour जो है वो in आया है वहां पर. आगे
टिल और टू में क्या अंतर? टिल रिलेट्स टू ए टाइम्स वाइल टू रिलेट्स टू ए प्लेस। टिल जो है वो टाइम के लिए यूज होता है और टू जो है वो प्लेस के लिए होता है। जैसे ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट एंड वी स्ट्रोल्ड टू द एंड ऑफ द लेन। बिटवीन या अमंग, बिटवीन जो होता है वो दो जनों के बीच में, दो लोगों के बीच में कोई बात होती है तो वो बिटवीन होता है दो के लिए, केवल टू के लिए। और अमंग जो है दो से ज्यादा के लिए भी हो सकती है, दो मतलब दो से ज्यादा के लिए ही होती है। जैसे बिटवीन रिलेट्स टू टू वाइल अमंग रिलेट्स टू मोर देन टू। जैसे द लिटिल बॉय स्क्वीज्ड हिमसेल्फ बिटवीन द टू men ऑक्यूपाइंग द bench। दृष्टि इज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, तो ज्यादा स्टूडेंट्स थे वहां अमंग आ गया। जैसे डिवाइड दिस मनी बिटवीन राम एंड श्याम, तो बिटवीन आ गया क्योंकि दो के बीच में बांटने हैं वो पैसे, राम और श्याम के बीच में। जबकि डिवाइड दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, तो मिठाइयाँ बांटनी है लेकिन बच्चों के बीच, तो दो से ज्यादा हैं बच्चे इसलिए वहां पर अमंग आया है। आउट या आउटसाइड, आउट रिलेट्स टू ए मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू समवेयर एल्स, while outside relates to a position in the open। आउट जो है वो रिलेटेड है मूवमेंट के लिए, फ्रॉम इनसाइड टू समवेयर मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाने के लिए वहाँ आउट होता है। और आउटसाइड रिलेट्स टू ए पोजीशन इन एन ओपन, और आउटसाइड मतलब खुली जगह के लिए होता है, जैसे ग्राउंड, वहाँ आउटसाइड लगाया जाता है। जैसे ही वॉज केप्ट स्टैंडिंग आउटसाइड फॉर आवर्स, तो आउटसाइड आ गया यहाँ पर। नमन वेंट आउट टू रिसीव हिज फ्रेंड, ये आउट आ गया कि नमन अपने फ्रेंड को रिसीव करने के लिए निकला बाहर, है ना, वो घर से बाहर निकला है तो आउट आ गया। और स्टैंडिंग, ही वाज केप्ट स्टैंडिंग आउटसाइड फॉर आवर्स, आउटसाइड बिल्कुल बाहर पोजीशन शो कर रहा है कि घर से बाहर रहा कई घंटे। अब बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब है BSID, बिसाइड मतलब बिसाइड रिलेट टू ए पोजीशन मीन्स नेक्स्ट टू, यानी कि बराबर वाला। ये जैसे बराबर वाला घर है तो बिसाइड बोला जाएगा। और बिसाइड्स मतलब मीन्स अपार्ट, मतलब के अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। जैसे माई फादर केम एंड स्टूड बिसाइड मी, मेरे पापा आए, मेरे फादर आए और मेरे पास, मेरे बराबर में खड़े हो गए आगे, तो वो बिसाइड आया। अब बिसाइड्स अमित टू अदर बॉयज वर कॉल्ड, मतलब अमित के अलावा दो दूसरे लड़कों को बुलाया गया। ठीक है। इन और इनटू, इन रिलेट्स टू प्लेस, इनटू रिलेट्स टू डायरेक्शन। इन जो है वो प्लेस को शो कर रहा है और इनटू जो है डायरेक्शन को शो करता है। जैसे आदिति स्वैम इन द पूल डेली, आदिति तैरती है पूल में रोज, तो वो इन आया है। लेकिन आदिति डाइव्ड इनटू द पूल विद ए स्प्लैश, तो जब वो कूदती है पानी में तो वो पानी की गहराई में जाती है, इसलिए वहां इनटू आया है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है बाय और विद। बाय रिलेट्स टू द डोर और एन एक्शन, विद रिलेट्स टू द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एन एक्शन। जैसे द इजी वाज, नहीं, द एसे वाज रिटन बाय मी, ही ड्रोव द मंकी ऑफ विद ए स्टिक, द monkeys were drived off by him with a stick। तो यहाँ by और with आ गया। above, below and over and under। above and below relates to a higher and lower level respectively, while
हायर मतलब अबाव मतलब हायर ऊंचा, बहुत ऊंचा, और बिलो मतलब उसके नीचे, लेवल नीचे का लेवल। वाइल ओवर एंड अंडर रिलेट्स टू पोजीशन डायरेक्टली अबाव। डायरेक्टली अबाव मतलब किसी चीज के ऊपर, जैसे कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। और अंडर मतलब नीचे के लिए होता है, जैसे फिश रेयरली स्विम अबाउ द वाटर सरफेस। तो पानी के ऊपर आ गया, वो अबाउ आ गया। देयर वाज ए बिग पेंटिंग बिलो हिज पिक्चर ऑन द वॉल। यहाँ बिलो आ गया। द सन इज ओवर अवर हेड एट नून। ओवर बहुत ऊपर ऊंचाई पे होता है, जो वहाँ ओवर लगता है। एंड द लिटिल बॉय हिड हिमसेल्फ अंडर ए टेबल। तो टेबल के नीचे के लिए वो अंडर बोलते हैं, वहाँ अंडर लगता है। तो इस तरीके से अब मैं आपको इसकी रिटन एक्सरसाइज कराऊंगा। एक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट prepositions from those within the brackets. First, this man has no taste dash music. तो यहाँ पर ब्रैकेट में इन या फॉर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? दिस मैन हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। नंबर 2, शी इज ashamed dash her behavior. behavior, behavior। तो यहाँ पे क्या आएगा? या तो एट आएगा या फिर ऑफ आएगा, तो यहाँ ashamed ऑफ होएगा। नंबर 3, the actress is proud dash her beauty। तो यहाँ पे या तो ऑफ या फिर एट, तो क्या आएगा यहाँ पर? प्राउड ऑफ हर। माई ब्रदर goes to school dash bus। तो इन या बाय, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर माई ब्रदर गोज टू स्कूल बाय बस। नंबर 5, वी गो टू कॉलेज डैश फुट। तो यहाँ पर ऑन या बाय, तो यहाँ क्या आ सकता है? वी गो टू कॉलेज ऑन फुट। नंबर 6, द गर्ल्स लेफ्ट द room 1-1। तो यहाँ बाय या आफ्टर, क्या आ सकता है? 1/1। नंबर 7, they have invited us dash tea for
या टू, तो क्या आएगा यहाँ पर? इन्वाइटेड अस टू टी. नंबर 8, the leaves of trees fall dash in autumn. From off. The leaves of the trees fall off in autumn. Number 9. I caught the thief dash the collar. तो ब्रैकेट में बाय या फ्रॉम, तो क्या आएगा? I caught the thief by the collar. Number 10. His uncle deals dash clothes. तो यहाँ पर आएगा with या फिर in, तो यहाँ हो जाएगा deals with clothes. इसके बाद नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with suitable prepositions. First, the aeroplane was flying dash the Caspian Sea. तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्लाइंग ओवर. नंबर 2. He is an accountant dash profession. 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 तो he is an accountant by profession. Number 3. The Rajputs quarreled dash themselves. तो क्या आएगा यहाँ पर? among themselves. Number 4. She came and sat dash her ailing father by. Number 5. A sword is hanging dash his head. तो यहाँ आएगा on his head. Number 6. The legs
dash this chair are broken. The legs of this chair are broken. Number 7. The woodcutter worked dash morning to night. तो आएगा worked from morning to night. Number 8. I cut the apple dash a knife. तो आएगा with a knife. Number 9. The lion went dash the den. So went into the den. Number 10. Agra is famous dash the Taj Mahal. Famous for the Taj Mahal. 11. We congratulated him dash his success. To congratulate him on his success. Number 12. My mother has a great liking dash novels. For novels. 13. The old lady died dash August 27, 2017. तो died on, क्योंकि डेट आगे इसमें आ गया इसलिए. 14. The children hid dash the thick bushes. तो यहाँ आएगा hid behind, पीछे. The children hid behind the thick bushes. और last sentence 52. Please wait dash the doctor will call. Please wait dash the doctor will call you dash name. यहाँ क्या आएगा? Please wait until the doctor will call you by name. तो इस तरीके से ये 15 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज होगी प्रेपोजिशंस की. और आप लोग अपने इसकी PDF बना के भेजूंगा मैं, उस PDF को अपने रजिस्टर में कर लेना और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो.
मैंने समझा दिया है। स्कूल की वेबसाइट पे पेपर मिलेगा आपको, जब खोलोगे तो उसमें आपको अपना जब खोलोगे तो ऊपर लिखा होगा पीरियडिक टेस्ट 1, उसके बाद में क्लास 6 इंग्लिश, उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा उसमें, और उसके बाद में क्लास एंड सेक्शन भरना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन आएगा 6A, 6B, 6C, 6D, तो उसमें जो भी एक ऑप्शन होगा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस सेक्शन से आप बिलोंग करते हो वो टच कर लेना। उसके बाद 20 क्वेश्चंस होंगे, टिक मार्क के आपको आंसर चूज करके टिक मार्क करना है और लास्ट में सबमिट जरूर करना है। ओके।